Good. So, ladies and gentlemen, yesterday we talked about certain rules, and the rules, among the rules, first of, if कुछ चीज अगर रहती हो और मैं कहूँ कि जी आपने कर ली और आपने नहीं की, तो वो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि मैं तो वही चीज 3 दफा पढ़ाता हूँ, तो बाज़ औक़ात ये फील होता है कि जी ये मैंने बोल दिया हुआ है, लेकिन वो शायद नहीं बोला होता। तो आप मुझे वो कर सकते हैं कि नहीं जी ये बात नहीं हुई, दोबारा कर दें, नॉट एन इशू। तो कल हमने डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसको एक्सप्लेन किया कि इसमें फर्क क्या है। हमने कल ये बात की, और अगर नहीं भी की तो अभी हमने कर ली, कि अगर इफ यू टॉक अबाउट दी दिस टीसीपी आईपी मॉडल, so ladies and gentlemen, you have just seen on the whiteboard that this model consists of 5 different layers, starting with the application layer, going to the transport layer, then to the network layer, then to the data link layer, and finally to the physical layer. Ladies and gentlemen, these 2.5 here, I think the colors are visible. Am I right? If I use a different color, let me know. So here is the transport that is in green up to the half of the data link layer that is operated or that is implemented in your operating system. While this part, data link layer up to the physical layer, that is implemented in your software plus hardware. Getting? Okay. इसी पे सोचें and give me just 30 seconds. अगर मेरे स्टूडेंट कहेंगे जी हमें दिखाओ तो सही, so that's the reason I took 1 minute approximately to show you. So ladies and gentlemen, for example, if I assume that my device will be connected to a switch here, for example, or although switch वहां से मैंने remove कर दिए हुए हैं, although switch यहाँ पे नहीं, लेकिन you can assume that this is a switch. So इसका मतलब है कि this device
this device will be connected through this wire, a switch will be connected to this wire, which is called a UTP cable, to the a device which is inserted in within my computer or laptop, which is this one, which is called network interface card, NIC, network interface card. So it will be connected something like this, as you can see, and the other end will be connected to the switch. And I'm connected, simple. So this is the hardware. जहां पे 1.5 layer मैंने भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 1.5 layer is there. So it is here. Getting? यही चीज अगर आप कहें जी नजर तो नहीं आ रहा मुझे, भाई ये आपको नजर नहीं आ रहा, it is here. And I can put it here like this. जी बात करेंगे इस पे, वो आप अपने थ्योरी के लेवल से पूछिएगा. Here. So अगर ये स्विच है तो इसके अंदर ये डिवाइस लगा हुआ है NIC कार्ड. Got it? Yes. That is one way. The other way is that I should have a wireless device inside my laptop. You can see here for antenna. You can see here for antenna. So antenna connected here. Now no wire is required. So now instead of that I need any cable, this device, which is an NIC, which is a Wi-Fi NIC now, which is a WLAN NIC now, will be connected to this router, जो कि आपकी पहुंच से थोड़े से दूर रखे गए हुए हैं on the air conditions. अब राउटर ढूंढना चाहो तो ढूंढ लो. सर वो काम तो नहीं करते हैं सर. नहीं, फिर सुबह भी काम कर रहे थे सर हम जब किसी ने इसको तो ऑफ किया हुआ है, ये तो किसी ने ऑफ किया हुआ है. हाँ जी. तो ये इसको चेक अभी मुझे 1-2 मिनट मिले तो मैं इसको अभी चेक करवा देता हूँ. इसको मैंने 11:30 बजे इमरान को यहाँ भिजवा के चेक करवाया कि जी इंश्योर करो कि चीज मुझे वहां पे चलती हुई मिले. तो नेट में मसला नहीं है. नेट मैंने नीचे वहां से उठाया इन द समर इंडस्ट्रियल से, और आपकी इस पूरी बिल्डिंग में अपनी जो हमारा DCSC का पार्ट है सब तक पहुंचाया. तो समर मैंने घर में छुट्टियों की बजाय इस काम में लगाई. तो नेट यहाँ पे अवेलेबल है, ऑप्टिकल के ऊपर हम अवेलेबल हैं. कंप्यूटर हमारे लैपटॉप उस तक सिस्को एकेडमी तक हमारा नेट जो है दैट इज ऑन दी ऑप्टिकल फाइबर नाउ. तो द बेस्ट व्हाट वी कैन और द बेस्ट व्हाट इज अवेलेबल इज देयर. Anyhow, come back, ladies and gentlemen. The third option can be that instead of this, you may use a dongle like this. Just put this in your USB any slot, and the Wi-Fi is there. No wireless mouse, nahi. It is for the Ethernet. Sorry, not Ethernet. Wi-Fi. ठीक है. So if let it be that my some way मेरा Wi-Fi कार्ड खराब हो गया, या मैं उससे बेहतर Wi-Fi कार्ड लगाना चाहता हूं, because this is considered to be a good one. आम जो है, अदो ये आम वाला है, आम वाला जो है ये 1000 रुपए का है, और ये रियल जो है ये 4100 रुपीज का है. तो यानी कि तकरीबन 4 गुना उससे महंगा है. काम करता है. टीपी लिंक सस्ता है इसलिए लिया, क्योंकि अगर ओरिजिनल में लेता तो शायद मुझे 4000 की बजाय 40,000 का मिलता. इतना महंगा क्योंकि ये हैकर्स यूज करते हैं. तो वाईफाई की हैकिंग के लिए गुड ऑप्शन. आम वाईफाई नहीं कर सकता, ये करता है. जी नहीं हैक उस वक्त नहीं कर रहे. आप स्पीड ये है कि आगे जाके बताऊंगा
कि वाईफाई पे जब हम आएंगे तो देयर आर डिफरेंट फ्लेवर्स। फ्लेवर से मुराद द बेसिक इज 802.11. अब 11 which was supporting only 1 megabit per second. Then came 11B which was supporting 11 megabit per second. Then came A 54 megabit per second. Then came G again 54 megabit per second. Then came N up to 300 megabit per second. AC which supports in around 1.3 gigabit per second. So the better standard or the newer standard support more speed, more capacity. अच्छा, उसका भी जवाब ले लें जी। अगर आप मोबाइल की बात करते हैं तो अगेन जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको फ्लेवर्स का नाम बताए कि इट कैन बी 802.11, इट कैन बी 802.11 बी, जी, एन, ए सी, ए एक्स, ब्ला ब्ला। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें आपकी मोबाइल में इट कैन बी ए फर्स्ट जनरेशन मोबाइल जिसको 1G कहते हैं, इट कैन बी 2G, इट कैन बी 2.5G, इट कैन बी 2.7G, इट कैन बी 3G, it can be 3.5G, it can be 4G, and it can be 5G as well now. So every G is increasing the speed, and the 4G is up to around 100 megabit per second. Make sense? Any other question? That is डेढ़ लेयर जो मैंने आप वहां पे आपको दिखाई हुई है, यहाँ पे आपको ये मैंने बताया हुआ है हार्डवेयर एंड, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, ये या तो इसके ऊपर है या वो इसके ऊपर है या वो इसके ऊपर है। मुश्किल बात है ना, सिंपल, क्या मुश्किल क्या है इसमें? डिपेंड, ये पुराना कार्ड है तो ये 100 मेगाबिट पर सेकंड सपोर्ट करता है, लेकिन जो लेटेस्ट है वो 40 गीग तक सपोर्ट करता है, 40 gig, and people are going for 100 gig now, which is our corporate Ethernet. ये क्वेश्चन था। Ethernet मतलब डायरेक्ट लगाइए, उसकी स्पीड ज्यादा हो गया कंपेयर टू वाईफाई। अगेन मैंने कहा कि अगर मिसाल के तौर पे आप इसका पहला वाला कार्ड लगा लें तो वो 10 मेगाबिट पर सेकंड है, पुराना कार्ड। वाइल अगर आप इसका वायरलेस का नया कार्ड लगा दो तो इट विल गिव इट मे गिव यू अप टू अराउंड 1 गीग। ये कह रहे कि दोनों कनेक्शन का जो है ना वो स्पीड सेम है, लेकिन नहीं है सेम। अगर मतलब हम दो कनेक्शन तो वायरलेस भी लगाए वायर भी लगाए, दोनों का सब कुछ सेम हो और स्पेसिफिकेशन का सेम हो, फिर वायर ज्यादा वो करेगा उसमें। वायर की इसलिए बेहतर होती है कि वायरलेस शेयर्ड होता है, इंटरफेरेंस नहीं है। इंटरफेरेंस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट आइटम, क्योंकि वाईफाई में इतनी इंटरफेरेंस होती नहीं है। मेजर चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वाईफाई जो है वायरलेस जो है वो हमेशा शेयर्ड होता है। मिसाल के तौर मैं कहता हूँ 1 गीग, एक बंदा है तो 1 गीग, 2 हो गए तो आधा आधा हो गया, दोनों को 500 500, 10 हो गए तो हर एक को 100 मैग 100 मैग एंड सो ऑन। यहाँ पे डेडिकेटेड है। केबल में अगर केबल कहती है कि मैं 100 गीग हूँ, 100 केबल 100 मैग हूँ तो बस 100 मैग हूँ, वो किसी से शेयर नहीं है, वो डेडिकेटेड है। यही क्वेश्चन था। नाम क्या आपका? मुजीब। अब क्लियर हो गया? किसको? आपने तो ले लिया, आगे आप जो मर्जी करो, आपको तो वो मिल गया, आगे बढ़ने दो। ये सारी चीजें अब क्लास के बाद उधर वापस पहुंचानी है, ठीक है? फिर ओके, वापस आने दीजिए मुझे। तो हमने कल की क्लास में अब आपको पता चल गया कि डेटा कॉम के काम कहां पे होंगे, ये जगह डेटा कॉम की है, और इससे ऊपर जितने भी टास्क हैं, फंक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं, वो अपर लेयर्स में होंगे। और अपर लेयर कहां रिजाइड करती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्यों सर, गलती कहां है? नहीं है गलती, चले आपकी मर्जी। वो अलग बात है कि उमर कहता है ठीक ही होगा। ओके, वापस आए जी। तो हमने कहा कल बुक्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था, और हमने ये भी देख लिया था
कि हमारा ये कोर्स इज अबाउट डेटा कम्युनिकेशन एंड डेटा नेटवर्क्स, और हमने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की कि इनमें फर्क क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमने ये कल एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जहां नहीं की आप मुझे रोक सकते हैं कि यहां से स्टार्ट हो रहा है। हमने ये देखा कि एक सिंपल कम्युनिकेशन की अगर डेफिनेशन करूं तो क्या है, तो मैंने कहा कि जी बेसिक कंपनी वो है कि अगर दो डिवाइसेस हैं, आप यहां से कुछ भेजना चाहते हैं नंबर 1 से, और नंबर 2 तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं, अगर वो एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली चीज पहुंच जाती है, इसका मतलब कम्युनिकेशन होगी। दैट इज द फंडामेंटल इशू, दैट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम। और लाइबा ये मैंने नहीं कहा, किसने कहा है? शैनन ने कहा है। किसने कहा है? शैनन ने कहा है। कहता है द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन इज रिप्रोड्यूसिंग one point at one point when you destination, one point से मुराद destination, either exactly or somewhat approximately a message that is been sent from another point. That is the basic theory of communication. Clear है? Okay, अगर ये clear है, जो कि होनी चाहिए, तो then हमने कहा कि जी अगर हम ये चीज देखें, so the key points of our work here is to explain you data communication, to explain you networking, and networking is related to the protocols which I explained. Now, if you want to talk about the data communication or digital communication, so what are the tasks? But definitely I have to generate the signal. I have the message from the upper layer application, which is some bits, but because Alhamdulillah we are our engineers, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि the thing which is traveling onto the medium will never be the bits, they will be the signals. So these signals need to be generated. Once they are generated, then you will not place them in a box. You will transmit them. Maybe on the air, maybe on the copper medium, maybe on the copper medium. Thank you. Maybe on the copper medium, maybe on an optical fiber, maybe in water, maybe in vacuum, but you have to do it. ठीक है उमर? Then after the transmit this, you will put it on the transmission medium. That is an example of the transmission medium. You have to encode your signal according to the requirement of the medium. Then definitely you need an interface between your one system and another system. And for this you need interfacing. And for interfacing you need a proper interface. Like for this, again, my data is generated here in my laptop, but you can see it on the screen. Why? Because there is an interface between my laptop and the multimedia. So interface is here, which is HDMI in this case, which is RJ45 in this case. RJ45, registered jack 45. Then you definitely, there need to be some control, and these controls are implemented here, which is called data link control. Data link control, and might be multiplexing. You may be multiplexing your audio, video, data. Like here, for example, if I am transmitting, because I do every day properly. यहाँ पे तो सिर्फ recording के लिए I am using the Zoom, but in my other classes, my students are at their home, maybe other city. So I transmit. So definitely my audio, video, and my screen need to be multiplexed together. Again, that is done that is part of the data communication, digital communication. इसलिए अगर आपको कॉल कहिएगा है कि मैं जी डेटा कम्युनिकेशन पे काम कर रहा हूँ, डिजिटल कम्युनिकेशन में काम कर रहा हूँ, समझ जाओ कि ये बंदा फिजिकल लेयर पे काम कर रहा है या सम पार्ट ऑफ दी डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहा है। लेकिन अगर वो कहता है मैं नेटवर्क्स पे काम कर रहा हूं, इसके मतलब ऊपर लेयर्स पे काम कर रहा है, वो राउटिंग पे कर रहा है,
वो फ्लो कंट्रोल पे कर रहा है, वो रिलायबिलिटी पे कर रहा है, मे बी एनीथिंग, वो रिट्रांसमिशन पे कर रहा है. तो ऑल दिस इज कवर्ड इन दी नेटवर्किंग upper layers. And here in the networks, it can be as small as a body area network, as I explained in the last class, or it can be as large as your wide area network. And the biggest example, the good example, is your internet. So that comes, this field is generally divided into local network, wide area network, but these not only two, they are the important for us. May I say it like this? Correct? Okay. Then, ladies and gentlemen, थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कि ये ग्राफ मैंने अराउंड 2010 के आसपास, दोस्तों मैं सिस्को के साथ कोई तलक नहीं था, लेकिन सिस्को के डॉक्यूमेंट से मैंने ये क्रिएट किया था और उसको मैंने पब्लिश भी किया था. शो क्या करना चाहता हूं? शो ये करना चाहता हूं कि पहले मुझे ये पता हो कि आपको पता है किलो, मेगा, गीगा, टेरा, हेक्सा. व्हाट मीन बाय हेक्सा? शहर. सहर. व्हाट मीन बाय हेक्सा? क्या है? 10⁻18 लिखा हुआ है. 10⁻18. तो इसलिए जब मैं कहूं कि 0.09, तो 10⁻18 मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको पता चलेगा कि दिस इज नॉट ए स्मॉल वैल्यू. तो यहां पे मैंने जस्ट उसके 10⁻18 को खा गया, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि हेक्साबाइट पर मंथ. तो ये डेटा मुझे ये बता रहा है कि 2009 से 10 में दिस ट्रैफिक इंक्रीज्ड, एंड दैट इंक्रीज इज सीम्स लाइक के 0.1 से 0.2 हुआ है, बट इट इज 0.1 हेक्सा से 0.2 हेक्सा हुआ है. इसी तरह 0.2 हेक्सा से 0.6 हेक्सा हुआ है इन द नेक्स्ट ईयर. देन 0.6 से 1.2 हेक्सा हुआ है, 1.2 से 2.2 हेक्सा, 2.2 से 3.6 अप टू 214 मैंने उस वक्त प्लॉट किया था. अब इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि और ये भी सिर्फ मोबाइल ट्रैफिक की बात की गई, इसके अलावा लैंडलाइन की ट्रैफिक इसके अलग है. तो कहने का मकसद ये हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हमारी ये ट्रैफिक हर साल या हर महीने बढ़ती जा रही है. तो अगर ये काम मिसाल के तौर पे हुआ होता with a civil engineer who is designing, for example, a road, or a civil engineer or a planning engineer to design a town for you, और उसको कहा जाता कि जी अगले साल में जितने घर यहाँ पे उसको डबल करना पड़ेगा, कहेगा लेवने हो. और अगर यूं ही आपको कहे लेवने हो, तो आप उसे कहेंगे उससे अगले साल फिर उसको भी डबल करेंगे. तो कहेगा मैं तो आप लेवने नहीं हूं, मैं लेवने हूं. लेकिन इंजीनियर्स लाइक यू, कम्युनिकेशन इंजीनियर्स, नेटवर्क इंजीनियर्स, हैप्पी. वो कहते हैं दैट इज नॉट दैट इज अ चैलेंज, एंड दैट चैलेंज इज गिविंग यू अस अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर, टू अर्न मोर. हम और कमाना चाहते हैं, हम कहते हैं और डेटा भेजो. हम कहते हैं कि जी चलो कोई बात नहीं है, हम आपसे, हमें मिसाल के तौर पे 300 रुपए दो, पूरा महीना नेट इस्तेमाल करो, फॉर एग्जाम्पल. अनलिमिटेड जाओ. क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम ये अपॉर्चुनिटी से चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके अपनी जॉब्स, अपने सब कुछ को इनहेंस कर सकते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे अगर मैं फर्दर आपको दिखाऊं, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि जस्ट ये पर यूजर का ग्राफ है. जैसे साथ, तो हमने साथ का डेटा कैप्चर किया पर यूजर के नहीं, और उसको प्लॉट किया. और यहां पे हमने तकरीबन 3 से 4 एप्लीकेशंस को टारगेट किया. कौन सी? सबसे पहले स्ट्रीमिंग मीडिया. स्ट्रीमिंग मीडिया, मिसाल के तौर पे स्ट्रीमिंग मीडिया में सार बताएंगी क्या होती है स्ट्रीमिंग मीडिया? क्या ख्याल है लाइबा?
क्या ख्याल है जेंटलमैन? नाम बताएं। सुलेमान साहब, क्या मतलब है स्ट्रीमिंग मीडिया? यूट्यूब। जी अलीशा, what is my question? That I was pointing yesterday. Be active in the class. तो स्ट्रीमिंग का मतलब ये होता है, स्ट्रीमिंग का मतलब ये होता है कि एट द सेम टाइम इट हैज बीन कैप्चर्ड and at the same time it has been transmitted and at the same time it has been received and viewed. YouTube is not a streaming, that is a already stored somewhere, maybe 1 year back, maybe 30 years back. जी होती है, लेकिन जो आप लोग देखते हो कि अगर कोई मिसाल के तौर पे मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप वो देखते हैं तो इट इज नॉट ए स्ट्रीमिंग, इट इज you may call it video on demand. The video was there and you are watching it. That is different. तो स्ट्रीमिंग का मतलब ये होता है, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि आप इवन फेसबुक पे भी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, लेकिन जेनेरिक जो हमारा वो है, इस वक्त अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको अपने स्टूडेंट की तरफ भेज दूं, जो कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, दैट मे बी कॉल्ड एज ए स्ट्रीमिंग बिकॉज आई एम इट इज बीन कैप्चर्ड बाय माय लैपटॉप एंड सेंट एट द सेम टाइम एंड बीन वॉच्ड एट द सेम टाइम. गॉट इट? तो यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी तवज्जो मुझे दें तो आपको नजर आ रहा है कि जस्ट 1 ईयर में दिस नंबर इंक्रीज फ्रॉम समवेयर 20 kilobit per second up to around 70 kilobit per second. इसको देखो तो ये 20 को लैंड कर रहा है, और इसको देखो तो ये कहीं 70 के आसपास को लैंड, 80 को लैंड कर रहा है. क्या मतलब है? इसका मतलब है कि द यूजर आर गेटिंग मोर एंड मोर स्पीड. कल उसको 1 साल पहले ही वाज हैप्पी विद 20 kilobit per second. टुडे इज गेटिंग अराउंड 80 kilobit per second, 4 टाइम मोर. इससे पता चलेगा जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है उसको एक खुला मैदान दिया दे रहा है हमारा नेटवर्क इंजीनियर, कहता है जितना डेटा डाल सकते हो डालो, नो वरीज. आज से 30 साल पहले एप्लीकेशन प्रोग्रामर को पहली चीज बताई जाती थी, हाथ होला रखो, ज्यादा डेटा ना जनरेट करो, क्योंकि उस वक्त आप एक मॉडेम इस्तेमाल कर रहे होते विच वाज गिविंग यू एट द मोस्ट अराउंड 10 kilobit per second. kilobit per second. यहां पे वो कहता है कि जी नाउ यू कैन एंजॉय एट वेरी हाई स्पीड्स. मेक सेंस? अब यहां पे वो एक और बात भी कर रहा है अबाउट द पीयर टू पीयर एप्लीकेशंस. पीयर टू पीयर एप्लीकेशन. तो सुलेमान के साथ कौन है? जी एमन. एमन साहब आप बताना चाहेंगे पीयर टू पीयर एप्लीकेशंस. ओके, आगे चलते हैं जी. इसका मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, बताएंगी? टेक्स्ट भेजो और वहीं पे रिसीव हो गया. विच वन? क्वेश्चन बता रही है, बताएं क्वेश्चन. अच्छा, ये क्वेश्चन बता रही है कि मैं बताऊं कि पीयर टू पीयर का क्या मतलब होता है. लेट्स गेट द आंसर. द आंसर इज ए पीयर टू पीयर का कि नॉर्मली हम इस तरह कम्युनिकेट करते हैं. मिसाल के तौर पे आई राइट www.netacad.com and I get something on the page screen. लेट करें कि यूजर नेम पासवर्ड भी दे दिया तो आई गेट दीज रिसोर्सेज. उसमें कोई वीडियो है, क्लिक एंड दिस वीडियो स्टार्ट्स. कल वीडियो दिखाई थी, टी लर्निंग मॉडल बताया था. यस. तो कहने का मकसद ये है कि यू आर ऑलवेज रिक्वेस्टिंग एंड दे आर ऑलवेज fulfilling your requests. They are always fulfilling your request. Such a model is called client server. जैसे आप अल्लाह से हमेशा मांगते हो, अल्लाह हमेशा देता है, तो you are his clients and he is your server, मालिक. Agreed? This model is called client server model. Mostly it is implemented. याद रखो, हम ये एज्यूम करते हैं कि जो कम्युनिकेशन है दैट बिटवीन द टू मशीन. नो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज ऑलवेज बिटवीन द टू एप्लीकेशंस which are installed on this machine.
Like for example, when I write www.netacademy.com, I'm not writing on my computer. I'm writing to an application which is not maybe the Chrome, maybe the Firefox, which is a browser. So browser is an application. Similarly, जो उस एंड की चीज पड़ी हुई है, that is on another application, which you call as a server. That machine is not a server. कंप्यूटर साइंस वालों ने हमें धोखा दिया हुआ है कि जिस कमरे में ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है उस कमरे को कहते हैं ये सर्वर रूम है, और हमें धोखा देते हैं ये वाला सर्वर है। ये सर्वर नहीं है। सर्वर तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो है, जो कि मुझे मेरी रिक्वेस्ट को फुलफिल करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इस बात पे इत्तेफाक कर रहे हैं कि एक मॉडल है क्लाइंट सर्वर का, दूसरा मॉडल है, जैसे एग्जांपल ये दे दूं कि साहर के साथ कौन बैठा है? गुंजा। अब साहर और गुंजा को मैं 2 चैप्टर दे देता हूं पढ़ने के लिए, दोनों ही इंटेलिजेंट हैं। कहते हैं क्यों 2-2 चैप्टर पढ़ें? साहर कहती है पहला चैप्टर मैं कर लूंगी, गुंजा कहती है सेकंड मैं कर लूंगी। ये कहती है मेन जो उसके पॉइंट्स हैं मैं आपको बता दूंगी, एंड सो ऑन। अब इसमें कोई एक भी क्लाइंट नहीं है, कोई एक भी सर्वर नहीं है, दोनों जो हैं इक्वल हैं, पीयर्स हैं। सच ए नेटवर्क इज कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। एग्जांपल्स, यहां से कोई क्वेश्चन आया? जो एग्जांपल्स, you people have used the torrents. टोरेंट में क्या होता है? सर्वर नहीं है। आप ही का कोई मशीन एज ए सर्वर इस्तेमाल हो रही है और आपकी मशीन कोई एज ए क्लाइंट इस्तेमाल हो रही होती है। इसके मतलब इसमें कोई भी क्लाइंट में आप किसी को कुछ दे भी रहे होते हैं और उससे कुछ ले भी रहे होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So you become a server and they become your clients. This is not peer to peer. जी, इसमें इसके अलावा I can give you the example of e-mule. I can give you the example of e-donkey, Kaza. So these are some of the applications where if the model is simple, कि आप भी किसी को कुछ, चले मैं इसको एक छोटा सा वो बनाता हूं एंड देन आपको क्लियर कर देता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एज्यूम करो कि मेरे पास दुनिया में 1 मिलियन डिवाइसेस हैं, जिनमें से मैं सिर्फ यहाँ पे कोई 4-5 डिवाइसेस बना लेता हूं। ठीक है? उन 1 मिलियन डिवाइसेस पे फॉर एग्जांपल मैंने ई-म्यूल इंस्टॉल किया हुआ है। एप्लीकेशन अगेन मैंने कहा ये क्या है? एप्लीकेशन है, मशीन नहीं है। इसकी वजह से यहां पर भी ई-म्यूल इंस्टॉल्ड है, यहां भी ई-म्यूल इंस्टॉल्ड है, यहां भी इंस्टॉल्ड है, यहां भी इंस्टॉल्ड है। अब होता क्या है उमर? होता ये कि मिसाल के तौर पे यहां बैठा हुआ उमर को चाहिए कोई सॉफ्टवेयर, कोई म्यूजिक का ट्रैक, कुछ भी, कोई बुक, कुछ भी, ये सर्च में देता है और पता चलता है कि वो इन 2 के पास मौजूद है। मैं रेड को बना देता हूं इनके पास मौजूद है, इसके पास भी मौजूद है और इसके पास भी है। ये दोनों इसको देना शुरू कर देते हैं और इसको डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। लाजमी तौर पे ये मशीन, अगर ये उमर का कंप्यूटर है तो ये कंप्यूटर जो है ये हाफिज साहब का है, ये कंप्यूटर जो है ये करीम साहब का है, ये किसी का भी है, किसी को भी ये बंद कर देंगे। तो इसने किसी वक्त हाफिज साहब को ख्याल आया कि जी छुट्टी हो गई है, लैपटॉप बंद करो। जो ही इन्होंने लैपटॉप बंद किया, यहां से कनेक्शन खत्म हो गया और यहां से आ रहा है। गुड। फिर हो सकता है कि यहाँ पे उस वक्त कोई और मशीन आप हो गई हो, वो आपको देना शुरू कर दे, तो वो भी पॉसिबल है। अब यहां तो फील हो रहा है क्लाइंट सर्वर मॉडल का रुतबा। अब गुंचा क्या होता है? गुंचा यहां से बैठी हुई, इसको भी यही सॉफ्टवेयर चाहिए, ये भी सर्च में देती है तो पता चलता है कि इसके पास, इन 2 के पास भी है और इसके पास भी है, क्योंकि पार्ट कुछ इसके पास भी पहुंच चुका हुआ है। ये भी इसको देना शुरू कर देती है, आगे गुंचा को मिलना शुरू हो गया। यहां से भी गुंचा के पास आ रहा है। तो आप इस मशीन के बारे में क्या कहेंगे? ये यहां से ले रहा है और यहां पे दे रहा है।
It means it is a client as well as server. I will not call it as a client or a server. I will call these two machines are, all machines are peer to peer. अब बात समझ आ गई? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए तो एग्जांपल मैंने दे दी पीयर टू पीयर एप्लीकेशन, तो आप देख सकते हैं इसमें इतना ज्यादा आपको स्पीड का इंक्रीज नहीं देना पड़ा। यानी 2010 में भी उतनी स्पीड चाहिए थी और 2011 में भी उसी के साथ आपका काम चलता है। गुड। इसी तरह, सॉरी, ये डेट वाज फॉर दी पीयर टू पीयर। देन इज फॉर द वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग में भी कुछ माइनर इंक्रीज है, ठीक है। अब इसके लिए जरूरी क्या है मुझे जनाब? पहली बात आपके लिए एज इंजीनियर टारगेट है, यू शुड मैक्सिमाइज योर कैपेसिटी। यू शुड मैक्सिमाइज योर कैपेसिटी। क्या मतलब है? क्या मतलब है? नॉट बैंडविड्थ, कैपेसिटी। पढ़ो, सबको बताओ क्या लिखा है यहां। या तो हमें अलीशा ने बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है 150 मेगाबिट पर सेकेंड। इसका मतलब है कि अगर ये कार्ड हम अपने कंप्यूटर में लगा दें, विच इज ए वाईफाई कार्ड, तो इट विल सपोर्ट अस अप टू 150 मेगाबिट पर सेकेंड। दिस इज द कैपेसिटी। अगर मैं, अब मुझे याद नहीं कि शायद 1000 रुपये ज्यादा देता, क्योंकि मैं नहीं दे सकता था, तो दैट वाज गिविंग मी अराउंड प्रॉब्ली 1 गीग। तो व्हाट आई एम इंक्रीजिंग, व्हाट आई एम मैक्सिमाइजिंग? कैपेसिटी। तो अगर हमें इन दोनों स्लाइड से कुछ मिल रहा है, तो इसका मतलब यहां भी हमसे डिमांड की जा रही है ज्यादा दो, ज्यादा हमें देंगे। नेटवर्क हमें कह रहा है, यहां भी हमें कह रहा है कि पर यूजर पर यूनिट टाइम, पर यूजर पर यूनिट टाइम इंक्रीज मांग रहा है। तो उसके लिए हमें अपने नेटवर्क को, अपने मीडिया को तेज करना होगा, कैपेसिटी इसकी इंक्रीज करनी होगी। Probably this is supporting up to 100 megabit per second, but the one which is available in the department, that is supporting up to 1 gig. Probably the similar cable, looking like similar, but definitely not similar. They are of different categories. This is probably fifth category. The one which is inside my room is a 6th category. So that is supporting 100 meg. That is supporting the which you have seen, but it is available in the my office here. That is supporting 1 gig. So what I am maximizing, sir? Capacity. Umar, what I am maximizing? Capacity. The question has been asked. मुश्किल सवाल करते हैं, फिर पेपर क्यों ना मुश्किल हो। क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दी बैंडविड्थ एंड दी कैपेसिटी? इज इट? दूं जवाब? पेपर में भी दूंगा, क्या ना दूं जवाब? दें जी, कहती है पेपर में दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेड ऐसे भी ये आना है, डजंट मैटर। आगे बढ़ो। द आंसर इज द बैंडविड्थ इज द हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। Bandwidth is the difference between the highest frequency and the lowest frequency. Between the highest frequency and the lowest frequency. Nice. सहर इधर आओ, मुझे नजर नहीं आ रहा, ये पढ़ के इनको सुनाओ क्या क्या लिखा है इसके ऊपर। पहले इसको पढ़ो, 433 मेगाबिट। इससे आगे पहले इसको पढ़ो, बल्कि बोर्ड पे जाके लिखो, ये मार्कर लो और ये लाइन वहां पे लिख दो completely. Yes, look at the answer which is given by Sahar here. Sahar is writing
Good. 433 megabit per second on 5 gigahertz. 433 megabits per second on 5 gigahertz. एक लाइन ये लिखी सार ने, दूसरी क्या लिखी सार ने? 200 megabit per second on 2.4 gigahertz. Agreeing sir? ये लिखा है आपने? Yes. जो मैंने यहाँ लिखा है? Yes, sir. Okay, then we are on the same page. Come on. The difference is here. This gigahertz is the bandwidth. This gigahertz is the bandwidth. And this 433 is the capacity. बताता हूं. बोलो क्या कहना चाहती हो? The answer is here. Gigahertz. Hertz is the frequency. I hope you understand. कम से कम यहां तक पता है कि गुंजा को नहीं पता, पता है. So ladies and gentlemen, जी जी. ओके, कम ऑन अलीशा. अलीशा, आपका क्वेश्चन ये है कि 5 गीगाहर्ट्ज, इसका मतलब ये है कि ये कार्ड जो आपको दिखाया गया ये दो बैंड्स को यूज करता है. दिस 2.4 gigahertz is called the ISM band. This is called ISM band, Industrial Scientific Medical Band. ISM band, 2.4 gigahertz. And this 5 gigahertz is the uniband, UNII. They are hitting the two different part of the spectrum. One is 2.4 gigahertz and another is 5 gigahertz. अब कहता ये है कि इसको रब कर दो, जगह तो बने ना. ओके, अगर ये मेरा स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम इज द लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, डीएसपी में पढ़ाया है. Let it be, this is 2 gig, this is 3 gig, this is 4 gig, this is 5 gig, and so on. Now, this ISM band is somewhere here. And this band, uniband, is somewhere here. So, these frequencies, or this part of the spectrum, is used to carry bits or to carry signals per unit time. The hertz are like the bus or a vehicle, and vehicle carries passengers. So passengers are your bits and hertz are your व्हीकल. तो व्हीकल पे आप क्या रखते हो? बिट्स. और कैरी क्या होते हैं? बिट्स. लेकिन रियली उसके पीछे क्या है? हर्ट्स. तो हर्ट रिप्रेजेंट दी बैंडविड्थ एंड बिट पर सेकंड रिप्रेजेंट दी कैपेसिटी. दैट हाउ मेनी, मिसाल के तौर पे, a bus has a capacity of 55 passengers, a car
have again a vehicle which is a different part in the vehicle list, carry only 5 passengers. So that 5 is the capacity. जी gentlemen, आपके सवाल का जवाब हुआ नहीं हुआ? अभी दोबारा आगे देखिए, यदि जवाब नहीं जी इसके लिए प्लीज बी क्वाइट ताकि मैं सुन सकूं। जी सलमान, ठीक है, इसलिए 5 गीगाहर्ट्ज पे यू गेट मोर स्पीड। इसलिए अब पीपल आर थिंक, और ये दोनों बैंड क्यों, ये फिर कभी जवाब दे दूंगा क्योंकि ये फ्री है। यूनिबैंड एंड आईएसएम बैंड के लिए यू डोंट नीड टू टेक एनी लाइसेंस, यू डोंट हैव टू पे एनी फी। गॉट द आंसर? अब क्वेश्चन ये है कि अगेन मुझे उसने कहा कि नहीं जी बात समझ में नहीं आई। अब देखो फिर समझने के लिए मजबूर करें मुझे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये फ्रीक्वेंसी है, अगर लेट करें तो ये 1 मिनट में हुआ है, तो कितने हर्ट्स है? कितने? 6 हर्ट्स। अगर आप इसका मतलब है कि आपकी बैंडविड्थ जो है, अल्दो यहाँ पे एक ही होता ये है कि आपकी बैंडविड्थ स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर मे बी स्टार्टिंग विद 2 गीग ending at, for example, 2.5 gig. So what is the difference between the two? 0.5 gig. This is called your bandwidth or absolute bandwidth. Absolute bandwidth. अब भी नहीं समझ आई? Bandwidth नहीं समझ आई? The difference between the highest, like I take your voice and I give it to the spectrum analyzer, जो कि मैं चाहता था कि डीएसपी में हम ये करते, मुझे नहीं पता कि किया कि नहीं किया। So I take the voice of any student and then I give it to the spectrum analyzer. And the result is the minimum frequency is, for example, 100 hertz, and the maximum is, for example, 10 kilo. What is the difference between the two? 10 kilo minus 10,000 minus 100, which is 9,900. That will be called as your bandwidth. अभी नहीं क्लियर? ओके, अब अगर आगे तो लेट मी मूव फर्दर देन। नाउ दीज हर्ट्स के ऊपर व्हाट आई प्लेस? बिट्स। अगर एक साइकिल पे एक बिट रखूं, ज्यूम कर लेते हैं कि मेरी यहाँ पे 0.5 गीग की बैंडविड्थ है, 0.5 गीग की बैंडविड्थ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हर एक बिट के हर एक साइकिल के ऊपर मैं एक बंदा बिठाऊं, एक बिट रखूं, हाउ मेनी बिट आई कैन ट्रांसफर पर यूनिट टाइम? 0.5 gig. 0.5 gig. So that is my capacity. अब अगर सुलेमान कहता है कि जी ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है, वो कहता है मेरे पास एक सोल्यूशन है कि मैं एक साइकिल पे 2 बिट ले जा सकता हूं, एक बिट एक साइकिल पे 2 बंदे बिठाऊंगा, 2 बिट भेजूंगा। नाउ योर हर्ट्स चेंज नहीं हुए, साइकिल्स वही है 0.5 गीग। हाउ मेनी बिट्स यू कैन ट्रांसफर पर यूनिट टाइम? डबल। डबल से मुराद 0.5 के ऊपर 1 गीग, दैट इज योर कैपेसिटी। अब सुलेमान के बाद गुंजा कहती है ये कोई सोल्यूशन है, मैं 4 बिट एक साइकिल पे बिठा के भेजूंगी। गुंजा, अब हर्ट्ज चेंज नहीं हुए, बैंडविड्थ चेंज नहीं हुई, अब आपकी हर एक साइकिल के ऊपर 4 बिट रख दिए और ट्रांसफर किए। व्हाट इज योर कैपेसिटी नाउ? हाउ मच? यप, बी एक्टिव इन द क्लास, थिंक अबाउट दैट। यही पूछूंगा क्लास पेपर में, इसी तरह दूंगा कि ये है तो मुझे बताओ क्या ये, इससे क्या फर्क पड़ेगा? 2 हो जाएगी, 0.5 4 टाइम्स 2,
So 2 gig, that is the, what it is now? Capacity. Does it make sense the difference between the bandwidth and the capacity? Yes. Can I proceed further? Yes. जब क्वेश्चन अपनी मर्जी के करोगे तो थोड़ा टाइम दोगे ताकि सारी क्लासें बराबर आए। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि इस वक्त दुनिया में ट्रेंड क्या है, नोटेबल ट्रेंड्स क्या हैं। द फर्स्ट ट्रेंड इज दैट व्हेन आई वाज प्रॉब्ली 2000 के आसपास, and I bought a computer at that time, and that PC was a Pentium 1. Pentium 1, state of the art PC at that time, having a speed of 166, I remember, megahertz clock की क्या थी, 1.6 1.166। इतनी ज्यादा हार्ड डिस्क मैंने उसमें डाली थी कि कभी खत्म ही ना हो सके। कितनी? 2 GB लिखी है, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, नजर आ रहा है, 2 gigabytes only, and the RAM was, if I remember correctly, 128 meg। ये थी स्पेसिफिकेशन जी। इतना जबरदस्त कंप्यूटर आज अगर बच्चे को भी दें नहीं लेगा। अब आप वापस आ जाओ मेरे पास थोड़ी देर के लिए। अगर मैं यहां पे लिखूं सिस्टम इन्फो, नो, प्रॉब्ली नॉट नीडेड। If I write here Alt Control Del and go to the task manager, and ladies and gentlemen, show you here the performance, and show you the, first of all, CPU. This computer is so bad that it has only 12 processors. It has only, and 6 cores, 12 logical processors, and each is 2.2 gigahertz. Compare it with the 20 years back. 20 years back I was here. Today I am here. वो वाला तेज था ना, वो वाला गुंचा ये कहते हैं कि वो वाला तेज, ये वाला तेज है। गुंचा क्या कहती है, कौन सा वाला तेज है? अभी वाला। वो कहती है नहीं जी, हम आपके साथ, व्हाट्स योर नेम, अब्दुल्ला के साथ एग्री नहीं करती। अब्दुल्ला के साथ कोई भी एग्री नहीं करता। वापस आओ और बात करते हैं। रैम पे आ जाओ। कहते हैं कि जी 14 गीगाहर्ट्ज तो अभी अवेलेबल है और 16 जो है वो यूज में है। 16 giga I am already using, and 15 is 32 gig, थोड़ी सी है। वहां पे क्या थी, 128 मैम। दूसरी एग्जांपल मैंने ऐड की, क्यों ऐड की वो भी बताता हूं, आगे थोड़ा सा बढ़ने दें। थर्ड आइटम, रैम के बाद गो टू द हार्ड ड्राइव। वहां पे हार्ड ड्राइव कितनी थी, इतनी बड़ी, 2 GB। अब सिर्फ 1 टेरा ये है, और 1 टेरा और किधर गायब हो गई, या जी जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, 1 टेरा यहां पे भी है। SSD 1 टेरा यू कैन सी, एंड हार्ड ड्राइव अगेन 1 टेरा, सिर्फ 2 टेरा। आता हूं जी, थोड़ा सा टाइम देंगे जी अब्दुल्ला। The answer is, what I want to say here, कि ladies and gentlemen, the answer is कि the computing has become cheap and faster. ये उस वक्त के मुकाबले में जब खरीद रहा था तो इसके पैसे मैंने कई दफा उसको पे किए थे।
मेरा दोस्त आजकल यूके में है, तो उसको मैंने कई दफा पैसे दिए और आखिर में ये कंप्यूटर मिल गया। ये नहीं जिसको मैंने अभी मार किया है, तो उसके लिहाज से ये महंगा था उस वक्त। ये कितने का है? पता नहीं बेटे ने लिया है, लेकिन मेरे ख्याल 160 के आसपास है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि मैं ये बात बड़ी आसान से कर सकता हूं कि ट्रेंड टुवर्ड फास्टर एंड चीपर कंप्यूटिंग। और दूसरी तरफ पे कम्युनिकेशन का कहता हूं कि अगर एक 100 रुपया और दे 1000 रुपया और दे देता तो ये 150 मेगाहर्ट्ज मेगाबिट पर सेकंड 1 गीग बन जाता। इसका मतलब है कि मेरी कम्युनिकेशन भी तेज हो गई, सस्ती हो गई। जस्ट 150 मेगा से 1000 रुपया ज्यादा दो तो 1 गीग, ह्यूज। तो पता ये चला कि जनाब एक ट्रेंड है कि जी फास्टर एंड चीपर कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन। विद एविडेंस बात कर रहा हूं, कोई आपसे वो नहीं कह रहा कि आप कह नहीं ये गलत बात है। इफ यू हैव द एविडेंस, यस कम ऑन, आई हैव गिवन द एविडेंस। अब्दुल्ला एडमिट्स। आगे बढ़ता हूं। आप कहेंगे इतनी आपको इतनी पावर की जरूरत क्या है? तो गुंचा के साथ कौन है? कोई नाम है उसका? शैला, क्या नाम? हेरा। हेरा। अब बताओ यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज। कितने कितने ऑपरेटिंग सिस्टम है इस मशीन पे आपके ख्याल से? 2। किसी ने 2 कहा, अच्छी आंसर है जी। हेरा, कुछ गेस मार दो। तो यहां पे मुझे कहा जा रहा है कि इसको क्लिक करो और स्टूडेंट्स को बताओ कि यहां पे जी 2 3 4 5, सॉरी वो एक खुल भी गया, 5 6 7। 7 यहां देख लिए, फिर भी कहते हैं जी ये कम है। हम कहते हैं जी ठीक है। वर्चुअल बॉक्स में भी है, वो भी दिखा देते हैं जी कि वर्चुअल बॉक्स की तरह भाई ये वर्चुअल बॉक्स। तो 7 तो उधर हो गए थे। अब देखते हैं कि यहां कितने हैं, और अभी ये कम है। आई नीड मोर। मेजॉरिटी यस, एट वन टाइम। 1 2 3 4 5। यहां पे काली दोनों में सेम है। युबंटू वहां नहीं था, साइबर ऑप्स वर्क स्टेशन वहां नहीं था, साइबर ऑप्स सिक्योरिटी ओनियन वहां नहीं था। अभी तो शायद पैरेट भी डालना पड़े काली के बाद, मर्जी है। उससे क्या होता काम करते हैं साइबर, तो जब आप साइबर पे काम करते हैं तो उस वक्त आपको एक पीसी से गुजारा नहीं होता। यू नीड मल्टी, क्योंकि या तो यू नीड मल्टीपल हार्डवेयर, कि आप लैब में बैठे हो और कहें जी इस कंप्यूटर से मैं उस कंप्यूटर पे काम करता हूँ, अटैक करता हूँ, डिफेंस करता हूँ, कुछ भी करता हूँ। मुश्किल है, घर पे तो नामुमकिन है, पढ़ाते हो भी नामुमकिन है। तो देन वी यूज दीज मशीन साइमल्टेनियसली एंड डू द अवर टास्क। कौन ला के देगा बैटरी मुझे ऑफिस से? कोई भी नहीं ला के देगा। तो समझ आई? दैट इज का मतलब है कि ट्रेंड है टुवर्ड फास्टर कंप्यूटिंग, फास्टर कम्युनिकेशन। बस बेसिकली इसको वो सम अप कर दूं स्लाइड को, और फिर जो सीआर हुई सीआर शार्प स्लाइड नंबर आप काउंट किया करेंगे, क्योंकि मैं 3 डिफरेंट उसमें जाता हूं तो मुझे याद नहीं होता। तो दैट इज 14 नंबर। इसी तरह द पीपल एवरीथिंग ऑन द वेब, दीन के बारे में पता करना होता है तो वेब पे जाके कहते हैं क्या मतलब है इसका। इसी तरह योर नेटवर्क्स हैव बिकम मोर एंड मोर इंटेलिजेंट एंड यू नीड मोर मोबिलिटी। तो दीज आर दी लेटेस्ट और नोटेबल ट्रेंड्स इन दी नेटवर्क्स। ठीक है,
तो यहीं से इंशाल्लाह अगली क्लास में स्टार्ट लेंगे, लेकिन पहले मैं अटेंडेंस ले लूं और खुदा करे कि उस वक्त तक कंप्यूटर मेरा ऑफ ना हो। तो माशाल्लाह इसका बैकअप भी बेच अच्छा है। सिर्फ पहला काम ये कर देते हैं कि रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं।